Hello students, welcome again in my channel The School of Science. Today we are going to discuss about the matter around us are pure or not. Okay, students, if we talk about the common man and common man CM, okay, and PM, no, not PM, एंड साइंटिस्ट, ओके। अगर हम कॉमन मैन और साइंटिस्ट की बात करते हैं स्टूडेंट्स, इन टर्म ऑफ कॉमन मैन, अ प्योर सबस्टांस इज दैट विच हैव नो अडल्टरेशन, जिसमें कोई इम्प्योरिटीज ना हो, कोई अडल्टरेशन ना हो, वो कॉमन मैन की टर्म में प्योर सबस्टांस होगा। बट इन टर्म ऑफ साइंटिस्ट, राइट, एनी थिंग विच हैज सेम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इज द प्योर सबस्टांस, जिसके सारे के सारे पार्टिकल्स का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है वो सेम हो, तो वो प्योर सबस्टांस कहलाता है, राइट। नाउ स्टूडेंट, एज वी नो दैट मैटर इज एनीथिंग विच कंटेन्स सम स्पेस एंड हैज सम मास, राइट। थोड़ा सा मास हो उसका, थोड़ा सा वो स्पेस ऑक्यूपाई करे, तो वो हमारे लिए मैटर है। फॉर एग्जाम्पल सॉलिड, लिक्विड, गैस, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, okay। Now students, these matter is classified on the basis of chemical composition in basically two main types. First is pure substance, other is mixture. Students, if we talk about pure substance, they have fixed composition, but mixtures doesn't have fixed composition, right? Students, pure substance are further present in two types. One is element and the other is compound. Compound cannot be further broken. They are made up of compound। जो होते हैं students हमारे, वो बने होते हैं मॉलिक्यूल से। किससे बने होते हैं? मॉलिक्यूल से। बट योर एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट्स, दैट इज एटम। आपके एलिमेंट्स एटम से बने होते हैं, राइट। These elements are further classified in three basic types: metal, non-metals and metalloids। Student, as you know that metals are something which uh, lose electrons, okay, ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे। while your non-metals are something elements which गेन इलेक्ट्रॉन्स, ओके, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, ओके। ये आपके जो मेटल्स होते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, राइट, ओके। योर मेटलॉइड आर elements which gain and lose electron both. They show properties of metals and non-metals both, okay। Now students, your mixtures is further classified into uniform composition which is homogeneous mixture। homogeneous mixture में student ऐसा mixture होता है जो uniformly थ्रू आउट पूरे सॉल्यूशन में सोल्यूट को डिसॉल्व कर देगा, राइट। हेयर स्टूडेंट, ट्रू सॉल्यूशन भी हम इसको कहते हैं जहाँ पे पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर तक होता है, लेस देन 1 नैनोमीटर पार्टिकल साइज, ओके स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल योर NaCl इन वाटर, राइट, यानी कि अगर हम एक तरह से लेमोनेड बना लें, ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ ट्रू सोल्यूशन, राइट। नाउ स्टूडेंट्स, the other is heterogeneous mixture। If we talk about this, then students, here is colloid and suspension, two types. Colloids are the size of particles is 1 to 100 nanometer, while in suspension the size of particles are more than 100 nanometer, okay students। Now students, if we talk about pure substances, okay, which is a type of मैटर। मैटर का एक टाइप प्योर सब्सटेंस है एंड द अदर टाइप इज मिक्सचर, ओके। प्योर सब्सटेंस की बात करेंगे, इट इज मेड अप ऑफ ओनली सिंगल काइंड ऑफ पार्टिकल्स विच इज एटम और मॉलिक्यूल से समथिंग, राइट, ओके। These pure substance further divided to two types. One is element and the other is compound, okay। Now students, this element, when we talk about element, is cannot be splitted up into two or more particles, okay। इसको फर्दर हम तोड़ नहीं सकते दो से ज़्यादा पार्टिकल्स में, इसमें से बहुत सारी चीज़ें नहीं निकाल सकते। ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स इज प्रोड्यूस्ड व्हेन वी स्प्लिट द एलिमेंट। अगर हम उसको स्प्लिट करने की कोशिश करते हैं तो सिर्फ एक काइंड ऑफ पार्टिकल ही निकलेगा, ओके। फॉर एग्जाम्पल हेयर Fe, सारे के सारे Fe एटम हैं इन केस ऑफ आयरन, ओके। नाउ स्टूडेंट्स, इफ वी टॉक अबाउट एलिमेंट्स आर बेसिकली three type: metal, non-metals and metalloid। As I told you earlier that metals, there are a lot of properties, like they have sonorous, they are malleable, they are ductile, okay, they are electro positive, means they lose electron easily, okay, which is the main property of metals, like, right, okay। Now students, let us discuss about compounds. What compound is, okay?
Compound is anything which is also known as comes under pure substance, right? But it is made up of two or more elements. दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से मिलके बना होता है आपका कंपाउंड. बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है स्टूडेंट्स. ओके, नाउ इट इज़ इन फिक्स रेशियो. इसकी रेशियो भी फिक्स होती है. फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ 2:1, तो पूरे के पूरे कंपाउंड के अंदर रेशियो 2:1 ही रहेगी, राइट? नाउ स्टूडेंट्स, इफ़ वी टॉक अबाउट मिक्सचर्स, हमने प्योर सबस्टांसेस देख लिए, एलिमेंट एंड कंपाउंड, बहुत सिंपल था. नाउ स्टूडेंट, इफ यू टॉक अबाउट मिक्सचर्स, मिक्सचर्स आर बेसिकली टू टाइप: होमोजीनियस मिक्सचर and heterogeneous mixture. Okay, homogeneous mixture and heterogeneous mixture we talk in detail. Mixture, okay, now student, homogeneous mixture is something which mix completely. Okay, ये completely mix हो जाता है. Okay, here the particle size is very small or less than 1 nanometer size. ओके, 1 नैनोमीटर से छोटा पार्टिकल साइज होता है. एग्जाम्पल, शुगर इन वाटर. यहाँ पर जो वाटर लेवल होता है वो राइज नहीं करता और कंप्लीटली डिजोल्व हो जाते हैं बीच में जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं सोल्यूट के. ओके, वाटर लेवल को बिना राइज किए यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाता है. नाउ स्टूडेंट, अबाउट हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हियर द पार्टिकल साइज इज मोर देन 100 नैनोमीटर. 100 नैनोमीटर से ज़्यादा होगा पार्टिकल साइज. सिंपल, दे आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते. हेयर आप सैंड और सॉइल इन वाटर का एग्जांपल आप ले सकते हैं. ओके स्टूडेंट, नाउ लेट अस टॉक अबाउट सॉल्यूशंस. स्टूडेंट्स, बेसिकली दे आर होमोजीनियस. Okay, made up of two or more substances, solute and solvent. Okay, one is solute, one is solvent. Solute is always in lesser quantity, while your solvent is always in larger quantity. Okay, एग्जाम्पल आप काफ़ी सारे ले सकते हैं. लेमोनेड होगा, सॉल्ट इन वाटर, देर आर वेरियस एग्जाम्पल्स. इफ वी टॉक अबाउट ट्रू सोल्यूशन, स्टूडेंट, देर आर 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच वी हैव टू बी रिमेंबर दैट 1 नैनोमीटर से छोटा साइज होगा आपका पार्टिकल साइज. ओके, नाउ द सेकंड थिंग इज दैट ब्रोनियन मूवमेंट को ये शो करेगा. थर्ड थिंग इज दैट इट शोज इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑल्सो. बाकी किसी सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोफोरेसिंग शो नहीं होगी. नाउ स्टूडेंट, योर ट्रू सॉल्यूशंस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू फ्यू क्लासेस. वन इज एक्यूस सॉल्यूशन. एक्यूस सॉल्यूशन इन केस वी हैव वाटर used and the other is solvent. Okay, for example, your NaCl, it is a aqueous solution of sodium chloride. Okay, now the other is non-aqueous solution where the the other substance is नॉट वाटर. अगर हम वाटर में नहीं बनाते तो वो हमारा एक्यूस सॉल्यूशन नहीं होता. हमने सॉल्वेंट वाटर नहीं लिया तो हमारा जो होगा नॉन एक्यूस सॉल्यूशन होगा. द अदर इज saturated solution. Student, if we talk about saturated, then student you have to know that the further dissolution capability of the solvent particle is not देयर. ओके, वो फर्दर डिजोल्व नहीं कर पाएगा और फर्दर डिजोल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें टेम्परेचर राइज करना पड़ेगा. देन ओनली इट्स सैचुरेशन बिकम्स अनसैचुरेशन. ओके, नाउ स्टूडेंट, इफ यू टॉक अबाउट अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, इट इज द सॉल्यूशन इन विच मोर सोल्यूट कैन बी डिजोल्व. यहाँ पे हम बहुत सारे सॉल्यूशन डाल सकते हैं इन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, राइट? टेम्परेचर राइज करने से तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी. इफ यू टॉक अबाउट सॉल्युबिलिटी, स्टूडेंट, आवर नेक्स्ट टॉपिक, इट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट. कितना सोल्यूट हम डाल सकते हैं इन 100 ग्राम्स ऑफ वाटर, दैट इज सॉल्वेंट. कितना डाल सकते हैं 100 ग्राम्स में, वो हमारी सॉल्युबिलिटी को रेफर करता है. ओके स्टूडेंट, और एट अ गिवन टेम्परेचर है ये. अगर हम टेम्परेचर राइज करेंगे या लो करेंगे तो सॉल्युबिलिटी हमारी चेंज हो जाएगी. ओके, नाउ स्टूडेंट, आवर नेक्स्ट थिंग इज colloid. If we talk about colloids are solutions which having size in between 1 nanometer to 100. For example, our blood, for example, milk is also a colloid. Okay, student, its particle size is 1 to 100 nanometer and it also show Brownian motion यहाँ पर show होगा स्टूडेंट. ओके, Brownian motion show करेगा. zigzag motion भी कहते हैं Brownian motion को. Now students, if we talk about suspension is heterogeneous mixture, as you know. For example, muddy water, अगर हम किसी सॉइल पार्टिकल्स को वाटर में मिक्स करें तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा. वेरी सिंपल थिंग. ओके, ये जो होगा ये अनइवनली डिजोल्व हो रखा है हमारे पूरे के पूरे सॉल्यूशन के अंदर. इसकी कंपोजिशन जो है वो सेम नहीं है, राइट?
नाउ स्टूडेंट, हम जितने भी मिक्सचर्स बनाते हैं, कंपाउंड्स बनाते हैं, इन सब को प्योर सब्सटेंस बनाने के लिए, मींस इनको एलिमेंटल फॉर्म में रिमूव करने के लिए, अलग अलग करने के लिए, सेपरेट डाउन करने के लिए मिक्सचर को या कंपाउंड को, वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेसेस. Okay, these processes are we have to study in details. Okay, now our first process is evaporation. Let us discuss about evaporation, student. In this process, one non-volatile and other is volatile. Non-volatile solution और volatile solution को अगर separate करना है तब हम कर सकते हैं by evaporation. ओके, दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होना चाहिए. एक का बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए लो, मीन्स किसका होगा लो? वॉलेटाइल का. सिंपल सी बात है, जो इवेपोरेट हो जाएगा बहुत जल्दी. और एक का बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए हाई. हाई किसका होगा? नॉन वॉलेटाइल का, राइट. एट दैट, बाय दिस वी विल सेपरेट इजीली. फॉर एग्जाम्पल, आपका जो सॉल्ट हम बनाते हैं सी वाटर से, इवेपोरेशन के प्रोसेस से ही बनाते हैं. वेरी सिंपल. नाउ स्टूडेंट, योर सेकेंड प्रोसेस इज सब्लिमेशन. स्टूडेंट, सब्लिमेशन इज द थिंग व्हेन some solid is directly converted to gas by applying it heat. अगर हम थोड़ी सी हीट दे देंगे, वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, सो इन दिस केस वी ऑल्सो हैव वन कंपोनेंट. हमारे पास एक कंपोनेंट होना चाहिए जो वॉलेटाइल हो, एंड द अदर कंपोनेंट बिकम्स नॉन वॉलेटाइल, जो नॉन वॉलेटाइल हो. तभी हम इन दोनों को सेपरेट आउट कर पाएंगे इजीली. ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स, आर थर्ड इज सेंट्रीफ्यूगेशन. इट इज़ द प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है जहाँ पे हम लिक्विड के हैवियर पार्टिकल को, किसको? हैवियर पार्टिकल को अलग करते हैं लाइटर पार्टिकल से. ओके स्टूडेंट, बहुत सिंपल सी सा प्रोसेस है जहाँ हम हैवियर को लाइटर से अलग कर सकते हैं. ओके, इस प्रोसेस के थ्रू हम घी को सेपरेट करते हैं कर्ड से. ओके स्टूडेंट, व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन, इसका जो प्रिंसिपल है, द प्रिंसिपल इज दैट वी विल प्रोड्यूस अ फोर्स बाय सेंट्रीफ्यूगेशन. एक मशीन होती है सेंट्रीफ्यूगेशन जिसमें हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं, उससे एक फोर्स प्रोड्यूस करते हैं विच इज़ द मल्टीपल ऑफ ग्रेविटी, जो कि ग्रेविटी का मल्टीपल होता है, बहुत ज़्यादा ग्रेविटी उसमें लगती है. ओके, थ्रू बाय द हेल्प ऑफ दिस the heavier particles become settled down and the lighter particles being float on the top. Okay, लाइक दिस, ये हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस है. और बाय सेंट्रीफ्यूगेशन वी कैन ऑल्सो सेपरेट डाउन, और डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी वी यूज ब्लड एंड यूरिन टेस्ट. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट थिंग इज, इफ वी टॉक अबाउट a mixture where a miscible and non-miscible, immiscible liquids are present. Two liquids which are immiscible, जो आपस में मिक्स नहीं हो सकते. Okay, then we have to separate this by a separating funnel. This is separating funnel. Okay, separating funnel से हम इन दोनों को अलग कर लेंगे. Okay, now next thing is about distillation. If we talk about distillation, student, distillation is the process where we directly use the boiling point as a प्रिंसिपल. ओके, बॉइलिंग पॉइंट दोनों के दोनों लिक्विड्स का, और या अगर उसमें कोई सॉलिड मिक्स है उनका अलग होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए. एक का लोअर एक का हायर होना चाहिए. हमारा जो फॉर एग्जांपल वाटर है वो बॉयल करेगा एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो जो दूसरा कंपोनेंट है उसका बॉइलिंग पॉइंट मोर देन 100 होना चाहिए, मोर देन 100. एट दैट टाइम जो हमारा दूसरा कंपोनेंट है वो कहाँ रहेगा? जब हम 100 पे बॉयल करेंगे तो दूसरा कंपोनेंट तो अंदर ही रहेगा बीकर में, और जो हमारा वाटर है वो वेपर्स बनकर कंडेंसर के थ्रू बाहर आ जाएगा बीकर में. वेरी सिंपल थिंग. ओके, इफ़ यू टॉक अबाउट, ये बहुत ज़्यादा प्योरेस्ट फॉर्म हमें देता है, बहुत ज़्यादा प्योरेस्ट फॉर्म देता है वाटर की. ओके, बहुत इफ़ेक्टिव प्रोसेस है हमारा डिस्टिलेशन टू सेपरेट आउट वाटर. Okay, now next thing is fractional distillation. Student, fractional distillation is basically done for petroleum. के लिए किया जाता है fractional distillation. Okay, पेट्रोलियम के लिए. Student, here all the component which are present inside the petroleum are having different boiling point. सबका boiling point अलग अलग होता है. Okay, for example, here you can see petroleum gas, gasoline, kerosene, fuel oil, lubricants and residue, all having different boiling points. Okay, residue का boiling point सबसे ज़्यादा है, and petroleum gases which is at the top having very low boiling point. Okay, and as it
राइजेज एज वेपर्स, ये वेपर की फॉर्म में राइज हो गया और ऊपर से गैस बन के निकल गया आपका पेट्रोलियम गैसेस। ओके, सो इसका जो वेट होता है, जो इसकी कार्बन चेंज होती है वो सबसे कम होती हैं, कार्बन 1 टू कार्बन 4, और कार्बन 20 से ज़्यादा होती हैं आपके रेजिड्यू में, जो कि बहुत ज़्यादा हैवियर होता है और सेटल डाउन हो जाता है। ओके, विस्कस लिक्विड की फॉर्म में होता है आपका रेजिड्यू। ओके, नेक्स्ट थिंग इज दैट स्टूडेंट अबाउट crystallization or also known as recrystallization student. First we are going to solubilize our particular substance in water, then we again reheat this substance. Okay, then we convert into crystals. It is super saturated solution. जब इतने saturation तक हम उसको ले आएंगे कि उसके सारे वाटर मॉलिक्यूल का लॉस हो जाएं। ओके, फॉर एग्जांपल हम CuSO4 को प्रिपेयर कर सकते हैं, CuSO4.5H2O। ओके, हम यहाँ पे CuSO4.5H2O के क्रिस्टल्स जो हैं कि रिपोर्टेड हैं। ओके स्टूडेंट, CuSO4.5H2O, और इसी प्रोसेस से रिक्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस से उसको प्रिपेयर करते हैं। स्टूडेंट, इफ़ यू टॉक अबाउट एलम, ओके, और पोटाश, ऑल दिस आर prepared by recrystallization mechanism. Next thing is student something called chromatography, where chroma means color and graphy means instrument. Instrument used to separate out the color component को अलग अलग करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, दैट इज क्रोमेटोग्राफी। ओके, उस मेथड को कहते हैं। ओके, और क्रोमेटोग्राम हमारा उस इंस्ट्रूमेंट है, राइट। नाउ स्टूडेंट, हम इसका यूज़ ब्लड के ड्रग्स को रिमूव करने के लिए कर सकते हैं, क्लोरोफिल पिगमेंट को रिमूव करने के लिए, कलर्स ऑफ डाई, आपका डीएनए पिगमेंट्स को सेपरेट आउट कर सकते हैं, डीएनए के कंपोनेंट्स को। ओके, हेयर जनरली वी यूज thin layer chromatography. There are various chromatographies technique we have, but for your point of view, for your exam point of view, you always have to be focused on TLC or thin layer chromatography. Okay, thin layer chromatography, and the other chromatography is paper chromatography, TLC। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी ही आपके एग्जाम में आएगा, जो कि एड्जॉर्प्शन की प्रिंसिपल पर काम करेगा। द मेजर एफिनिटी विद सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट हमने यूज़ किया है क्रोमेटोग्राफी में, द पाथ ऑफ ट्रैवल, ठीक है, रिटेंशन पाथ उतना ज़्यादा ट्रैवल करेगा हमारा जो भी पिगमेंट है, द मेजर इट हैज़ द एफिनिटी विद सॉल्वेंट। ओके, और जितनी कम एफिनिटी होगी इसकी सॉल्वेंट के साथ, उतना कम छोटा पाथ ये ट्रैवल करेगा ऑन योर क्रोमेटोग्राफी पेपर। सो ड्यू बाय दिस एफिनिटी वी सेपरेट आउट द कंपोनेंट। हमारा बीकर में क्या होगा, क्रोमेटोग्राफी पेपर, उस क्रोमेटोग्राफी पेपर पे हम अपने क्या बोलते हैं, सब्सटेंस को अप्लाई करेंगे, जो भी सब्सटेंस और जो भी हमारे पास मिक्सचर है उसको अप्लाई करेंगे और सेपरेट आउट हो जाएगा ये डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स में। ओके, नाउ स्टूडेंट, समथिंग वी कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस, इफ वी टॉक अबाउट दिस, दिस इज द लिसिस, यानी स्प्लिटिंग ऑफ एनी particular compound or mixture by giving electricity. Electro means electricity. Okay, we give electricity here, right? For example, if I talk about water molecule, by electrolysis, when we apply here the electric energy, it will split up into two part, that is H2, यानी कि आपका हाइड्रोजन गैस, और आपका O2, your that is your oxygen gas. Okay, now if I talk about the concentration, students, for measuring the concentration, we generally use mass percent and volume percent up to the level of U in class 9th, but in class 11th you will study one new concept also, that is molarity. Okay, concentration के molarity को भी use किया जाता है, but if we talk about mass percentage, student, mass of solute divided by total mass, that is mass of solute plus solvent. Okay, and if we talk about volume, mass of volume of solute is divided by total volume, that is volume of solute and solvent, multiply 100%. Okay, this will give the volume percent, right? Two basic things at the end. One is the physical process. Physical process is the transformation where the change can be reversible. आप वापस से इसको change ला सकते हो. This change may be in the transformation of their state ही बदलेंगी. For example, solid state आपका liquid में बदल जाएगा, liquid gas में बदल जाएगा, और ये change reversible होगा, right student? And melting of ice is the basic example of this change. Okay, next thing is student, if we talk about chemical change,
हेयर न्यू सब्सटेंस फॉर्म, बट फिजिकल चेंज में आपका कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बना था, सिर्फ स्टेट चेंज हुआ था। ओके, हेयर द चेंजेस आर इरिवर्सिबल, आप वापस से कन्वर्ट नहीं कर सकते, और इट इज़ डन बाय केमिकल प्रॉपर्टीज एंड योर फिजिकल इज बाय फिजिकल प्रॉपर्टीज, राइट? So this is all, student. Like, subscribe, share. Bye, thank you. Your friends all say it's fine.